अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात से जो मुलाकात हुई वो तीखी बहस में बदल गई। ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध विराम पर कंप्रोमाइज करना ही होगा, युद्ध गलत दिशा में जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में 3 साल से चल रहे जंग में संभावित संघर्ष विराम पर चर्चा की। लेकिन ये पूरी जो बातचीत थी वो बहस में बदल गई। वो क्या बहस हुई, क्या क्या कहा गया, सुनवाते हैं आपको। A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're you- gambling with World War What you're- III. what you're You're speaking about? gambling with What you're World speaking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to respect to you. your Far answer. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the What- United what States you're of America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You We voted gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about we are If speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of accept times that thank there, you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. और इस पूरी बहस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के बाद से बहुत सारे कयास लगाए। हमारे सहयोगी उमाशंकर लगातार बने। उमाशंकर, क्या ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके मायने क्या है, जरा समझाइए।
जी देखिए, इस बहस के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से अपने ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट डाला गया है, जिसको कि बाद में ट्वीट में भी तब्दील किया जाता है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इस बातचीत के बाद उनको ये लगता है कि जो जो फायरी सिचुएशन है, जो प्रेशर है, वो किस तरह का है, और जेलेंस्की को लगता है कि अमेरिका का जो साथ है वो उनके लिए एडवांटेज है। ट्रंप ने लिखा है कि वो एडवांटेज नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जेलेंस्की जो है वो अभी शांति के लिए तैयार नहीं है, और आखिर में उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जेलेंस्की जब शांति के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। तो अपनी तरफ से एक तरह से ट्रंप ने इस बातचीत को यहीं खत्म मान लिया है, और जो जानकारी हमें व्हाइट हाउस की तरफ से वहां पे मौजूद पत्रकारों की तरफ से मिल रही है, उसके मुताबिक ये कि प्रेस वार्ता जो कि बैठक के बाद होनी थी, तो शुरुआती संबोधन था, उस प्रेस वार्ता को जो कि बैठक के बाद होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो जेलेंस्की की जो टीम है वो व्हाइट हाउस से बस में बैठकर निकलती नजर आ रही है। यानी कि जो एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स होना था, जिस तरीके से निटी-ग्रिटी तय होना था, बातचीत के मसौदे तय होने थे, जो रेयर अर्थ डील को लेकर जो बातचीत होना था, वो भी लगता है कि रद्द कर दिया गया है। और अब जो है जेलेंस्की की टीम व्हाइट हाउस से बैरंग वापस लौट रही है, इस तरह की जानकारी वहां से निकलकर अभी सामने आ रही है। औपचारिक तौर पे इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से तीखी बहस की शुरुआत हुई, खासतौर पे तब जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी बात कहनी शुरू की, और उन्होंने जब राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि युद्ध में शुरुआती दिक्कतें होती है और आपको ये महसूस होगा, जैसे उन्होंने फील होने की बात की, उसके बाद से ट्रंप भड़क गए और उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है, आप हमारी मदद के आधार पर युद्ध लड़ते रहे, वरना 2 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाती। और जब जेडी वेंस ने अपनी बात कही, उसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर एक बार कहा कि ऊंची आवाज में बात करने से, इतना ही जब उन्होंने बोला था तो ट्रंप ने एक बार फिर उनको बीच में काटा और कहा कि ये ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे बल्कि अपनी बात रख रहे हैं। तो इस तरह से 2 राष्ट्रपतियों के बीच, खासतौर पे तब जबकि एक उपराष्ट्रपति भी अमेरिका के वहां पे मौजूद हों, इस तरह की जो बहस है वो पहली बार जो है व्हाइट हाउस के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में देखने को मिली है, जब एक विजिटिंग जो डिग्नेटरी है, जो एक विजिटिंग राष्ट्रपति है, उनके साथ इस तरह की बहस हुई है। जेलेंस्की अपनी बात उनको लगता है कि उनको अपनी तरफ से पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप को ये लगता रहा कि जो शर्त उन्होंने तय कर दी है उससे बात थोड़ी भी आगे पीछे ना जाए और जेलेंस्की उसके लिए तैयार हो जाए। तो पूरी तरह से ये माहौल जो है वो खराब हो गया और बातचीत जो है लगता है अब रद्द हो गई है। अब इंतजार करना होगा कि आगे अमेरिका क्या कदम उठाता है। और जैसा कि ट्रंप के ट्वीट से जाहिर है कि वो अब तो, हालांकि उन्होंने यूक्रेन की मदद तो रोक ही दी थी, नई कोई मदद यूक्रेन को देने की बात उन्होंने नहीं की है। तो अपने ट्वीट में उमाशंकर ये भी कह रहे हैं कि जेलेंस्की नॉट रेडी, वो कह रहे हैं कि भाई जेलेंस्की तैयार नहीं है इस युद्ध विराम के लिए। अब वो उसका एक बार और मतलब समझेंगे कि क्या है, लेकिन इस तीखी बहस में ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख राष्ट्रपति तक कह डाला है। सुनिए जरा। We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. उमाशंकर साफ साफ कह रहे हैं ट्रंप की स्टूपिड प्रेसिडेंट। आगे उन्होंने ये भी कह दिया एक बयान में बहस के दौरान कि बाइडेन स्मार्ट राष्ट्रपति नहीं थे। अब यहां से सब कुछ साफ हो गया, क्योंकि वो भी अपने ट्वीट में ये भी कह रहे हैं जेलेंस्की इज नॉट रेडी फॉर पीस। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बातचीत आगे बढ़ी है और खासतौर पे राष्ट्रपति जेलेंस्की जो कि लगातार इस बात पर पहले से भी जोर देते रहे हैं कि वो एक सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका की तरफ से चाहते हैं, और ये भी एक बड़ी वजह है कि वो इस उम्मीद के साथ यहाँ व्हाइट हाउस पहुंचे थे कि जो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जो डील अमेरिका के साथ होनी है उसके एवज में उनको एक सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी। लेकिन बात जब यहाँ पे सीज फायर समझौते की भी होने लगी तो उन्होंने साफ तौर पे रूस के राष्ट्रपति को निशाना बनाने की कोशिश की और ये कहा कि जो है ये सीज फायर जो डील है वो नहीं होनी चाहिए जब तक कि यूक्रेन की जो हित है उसको भी सामने न रखा जाए। लेकिन जो पूरी बातचीत है
उसमें ट्रंप और उनकी जो टीम है वो डोमिनेट करती नजर आई। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस उनका है, सारे अधिकारी वहां पर उनके मौजूद थे। जो यूक्रेन के जो डेलीगेशन के जो मेंबर्स थे वो तो वहां पर थे, लेकिन वो उनको बातचीत का मौका तब मिलता जब डेलीगेशन लेवल की बातचीत होती, जो कि शुरुआती संबोधन के बातचीत होना तय था। और लंच के दौरान भी दोनों राष्ट्रपतियों के बीच, और खासतौर पे जेडी वेंस ने जिसका जिक्र किया कि लंच के दौरान हम और ज्यादा बातचीत करेंगे, ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया। तो बातचीत जो है वो एक ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ती। उसके पहले ही ये बहस हो गई और उसके बाद ट्रंप का ये ट्वीट आ गया है कि जब ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार होंगे तो फिर वो वापस आ सकते हैं। यानी कि जो बातचीत होनी थी वो अभी रुक गई है। जो हमारी जानकारी है वो कह रही है कि ज़ेलेंस्की तुरंत जल्दी ही वहां से व्हाइट हाउस से निकलने वाले हैं। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो उनको लेकर आई थी व्हाइट हाउस, वो वहां पर पोर्टिको में आ गई है और उनको लेकर वहां से निकलेगी। तो जो अभी 2-3 घंटे बातचीत आगे चलती और एक मसौदे तक, एक अंतिम नतीजे तक ये बातचीत पहुंचती, उससे पहले ही एक तरह से पैकअप हो गया है वहां पर। और ये एक अद्वितीय अभूतपूर्व जो स्थिति है वो व्हाइट हाउस से देखने को मिली है, खासतौर पे टीवी कैमराज के सामने। शुरुआत में संबोधन तो सही ढंग से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ज़ेलेंस्की ने बोलना शुरू किया तो उसके बाद बिल्कुल एक हावी होने के मकसद से ऐसा लगा कि ट्रंप और उनकी टीम जो है वो बैठी हुई थी और उन्होंने साफ तौर पे एक दबाव बनाने की कोशिश की ज़ेलेंस्की के ऊपर। मैं लाइव तस्वीरें भी दिखा रहा हूं इस वक्त उमाशंकर, जब वो पूरी टीम निकल रही है एक एक करके। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गाड़ी आकर के वहां खड़ी हो गई है। ज़ेलेंस्की निकलेंगे और इस गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी टीम निकलती हुई नजर आ रही थी। और लगातार जो टीम इस बातचीत में शामिल थी ट्रंप के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ, वो टीम निकल गई है। चूंकि व्हाइट हाउस अमेरिका का है और वहां पर पूरी तरह से, जैसा हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि पूरी तरह से हावी हो गए ट्रंप, और फिर उपराष्ट्रपति ने भी उनको टोका, लेकिन बात बनी नहीं। और फिर ये पूरी जो बातचीत है वो बहस में तब्दील हो गई, और जब बहस में तब्दील हो गई तो ये बातचीत संभवतः खत्म हो गई है। आगे कोई बातचीत होगी या नहीं होगी ये कहना बड़ा मुश्किल। ये देखिए गाड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, संभवतः ज़ेलेंस्की शायद आ गए हैं और वो यहाँ से गाड़ी रवाना होती हुई नजर आ रही। तो ये स्थिति है फिलहाल। ज़ेलेंस्की संभवतः रवाना हो रहे हैं यहाँ से और अब कोई बातचीत शायद नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी रद्द हो गई है। जो इस बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ये देखिए भारी सिक्योरिटी के बीच काफिला फिलहाल निकल गया है। तो ये स्थिति है और बातचीत फिलहाल दोनों की जो होनी थी वो खत्म हो गई है।